اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ابن اہدی جو خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا اور ہرقل کی فوج کا کماندار تھا، وہ انطاکیہ کی فوج میں کیسے شامل ہوا اس نے اس کی تفصیل بتائی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اس وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھڑ دوڑ کے میدان میں شہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن اہدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان تھا۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ ابن اہدی نے اس سے کہا، اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ اے اجنبی سوار۔ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو۔ دوسرے سوار نے کہا، تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی اے بدقسمت اجنبی۔ اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن اہدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن اہدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن اہدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن اہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن اہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن اہدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن اہدی نے بچا لیا اور فوراً ہی اس مسلمان شہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن اہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ ہرقل کی گرجدار آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ ابن اہدی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا، ادھر آ شہ سوار۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا، کیا تجھے بتایا نہیں گیا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ ابن اہدی نے کہا، مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اور میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ابن اہدی نے کہا، اس سے بھی زیادہ، جتنی شہنشاہ سمجھیں گے۔ کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہرقل نے کہا، ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، امین الامت، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے۔ ہمس پر اپنے دوستوں کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم ہمس میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں ہمس میں ہی روکنا چاہتے تھے۔ تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح کے تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کی۔ مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔
इतने बड़े लश्कर को 30-30 हजार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हर हिस्से का जो सालार मुकर्रर किया गया था वो तजर्बेकार और मुंतखब था। उन 5 सालारों में से एक का नाम माहान था, जो आर्मीनिया का बादशाह और अपने वक्तों का माना हुआ सिपाह सालार था। दूसरा गुस्सान का हुक्मरान जबला बिन अल अहम था, जो अपनी फौज साथ लाया था और उसी का वो सालार था। तीसरा रूस का एक शहजादा कनातीर था। चौथे का नाम ग्रेगरी और 5वें का दीरजान था। ये सब ईसाई थे और उन्होंने उसे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के इस लश्कर का सालार आला माहान था। हरकल ने उस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्ला कर दिया और जब ये तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया। उसने बुलंद जगह खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर कहा, सलीब के पासबानों, तुम जिस जंग के लिए इकट्ठे हुए हो ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मजहब हमारे मजहब के खिलाफ उठा है। हमारा ये फर्ज है कि उस मजहब को, जो दरअसल कोई मजहब नहीं, खत्म कर दें। मुसलमानों की फौज 40,000 से ज्यादा नहीं, तुम उनकी हड्डियां भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहाँ भी हमारी फौज पर हमला किया है चोरों की तरह किया है और वहाँ हमारी नफरी थोड़ी थी। वो कोई जिन भूत नहीं, तुम्हारी तरह के इंसान हैं। वो लुटेरे हैं जो तुम्हारे घरों में घुस आए हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे माल अमवाल नहीं लूटते, वो तुम्हारा मजहब और तुम्हारी इज्जत लूटने आए हैं। मौरिख वाक़िदी बिलाजरी और हेनरी स्मिथ लिखते हैं कि हरकल ने पहले ही उन लोगों को भड़काकर अपने लश्कर में शामिल किया था, अब उन्हें और ज्यादा भड़का दिया। इब्ने आहदी ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि हरकल ने दूसरा इज्तिमा सालारों, नायब सालारों और कमानदारों का किया। पहले उन्हें भी भड़काया, फिर उन्हें अहकाम दिए और हिदायत दी। उनके मुताबिक हर सालार की पेशकदमी और उसके हदफ का तयन किया गया। ये एक दहशतनाक मंसूबा था जो इतने बड़े लश्कर से आसानी से कामयाब हो सकता था। हदफ हम्स था और दूसरा दमिश्क। उसके साथ ही मुसलमानों की तमाम तर फौज को, जिसकी नफरी तकरीबन 40,000 थी, घेरे में लेकर खत्म करना था। हरकल ने घेरा डालने का बड़ा अच्छा मंसूबा तैयार किया था। उसके सालार कनातीर को अपने 30,000 लश्कर के साथ अंताकिया से समंदर के साथ साथ बैरूत तक पहुंचना और वहां से दमिश्क की तरफ मुड़ जाना था। उसका काम ये था कि मुसलमान आगे से पसपा होकर दमिश्क की तरफ आए तो कनातीर का लश्कर उन पर हमला कर दे। जबला बिन अल अहम ने हम्स की तरफ जाकर मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना और उन्हें खत्म करना था। मौरिखों ने लिखा है कि हम्स पर हमला करने वाले लश्कर में सिर्फ ईसाई अरब थे, जिनकी तादाद 30,000 थी। हरकल ने कहा था कि वो अरबों के खिलाफ अरबों को लड़ाना चाहता है। ये हरकल के तारीखी अल्फाज हैं। लोहे को लोहा ही काट सकता है। हम्स के इलाके में हरकल के एक और सालार दीरजान ने भी जाना था। उसने जबला से उल्टी समत से पेशकदमी करनी थी ताकि मुसलमान किसी तरफ से भी न निकल सके। सालार ग्रेगरी को एक और समत से हम्स के इलाके में पहुंचना और मुसलमानों पर हमला करना था। इस तरह सिर्फ हम्स और गिरदोनिवाह के इलाके में मुसलमानों पर हमला करने वाली रूमी फौज की तादाद 90,000 थी। माहान जो सालार आला था, उसे अपना 30,000 का लश्कर कहीं करीब रखना था ताकि जहाँ कहीं उसकी जरूरत पड़े वो पहुंचे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरकल का तमाम तर मंसूबा सुनकर कहा, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने आहदी। खुदा की कसम, तूने अपना घर जन्नत में बना लिया है। अगर तू ये खबरें लेकर ना आता तो खुद सोच के हमारा क्या अंजाम होता। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू सुलेमान, क्या तूने ये महसूस नहीं किया कि हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के काबिल नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो मैदान जंग में दुश्मन के आसाब पर छा जाया करते थे, चुपचाप अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को देख रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए अबू सुलेमान? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आह भरकर कहा, अमीनुल उम्मत, पीछे हटना एक जरूरत है, लेकिन पीछे हटना मेरी फितरत नहीं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम अबू सुलेमान, जो तू सोच सकता है वो शायद मैं न सोच सकूं। इस वक्त अपनी जात को न देख, अपने साथियों को और उनके अंजाम को देख और बता हम क्या करें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को दूसरे नाम से पुकारते हुए कहा, हाँ इब्ने अब्दुल्लाह, मैं उस हकीकत को देख कर बात करूंगा जो हमारे सामने है, और ये तूफान जो आ रहा है उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमें उस अल्लाह को भी मुंह दिखाना है जिसके नाम पर हम यहाँ तक अपना और अपने दुश्मन का खून बहाते पहुँचे हैं। हमारी जानें उसी की अमानत हैं। पहला काम ये करके अपने तमाम सालारों को जहाँ जहाँ वो हैं दस्तों समेत एक जगह इकट्ठा कर ले। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, और उन जगहों का क्या बनेगा जो हमारे कब्जे में है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीनुल उम्मत,
तो यकीनन दुश्मन के इरादे को समझता है। वो फैसला कुन जंग लड़ने आ रहा है और हर तरफ से आ रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। और तूने इब्ने आहदी से सुन लिया कि हरकल ने हमारी पसपाई के रास्ते रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। इब्ने अब्दुल्ला, हरकल हमारे दस्तों को वहीं घेरे में लेना चाहता है जहाँ जहाँ वो हैं। ये तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमें पहले से ही उसके मंसूबों का इल्म हो गया है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी शिकस्त मंजूर नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है अमीनुल उम्मत, लेकिन अल्लाह उनकी मदद नहीं किया करता जो अपने आप को दुश्मन और हालात के रहमो करम पर फेंक देते हैं। हरकल हमें बिखरा हुआ रखना चाहता है। तमाम सालारों को वो तमाम जगहें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्जे में हैं। अगर अल्लाह ने हमें फतह अता की तो ये सब जगहें हमारी होंगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हमें कहाँ इकट्ठे होना चाहिए? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जहाँ सहरा हमारे अक़ब में हो। जितनी आसानी और तेजी से हम सहरा में हरकत कर सकते हैं, उतनी तेजी से उन इलाकों में नहीं कर सकते जहाँ इस वक्त मौजूद हैं। सहरा में हमारा दुश्मन नहीं लड़ सकता। हम सहरा को अपने करीब रखेंगे तो पीछे हटने में सहूलत होगी, और जब दुश्मन हमारे पीछे आएगा तो वो अपने इलाके की सहूलतों से महरूम हो जाएगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तेरे सामने ऐसी कौन सी जगह है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जाबिया। वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं और करीब से ही सहरा शुरू हो जाता है। दरियाए यरमूक भी बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के बिखरे हुए दस्तों के सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, लेकिन वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी निस्बत ज्यादा काबिल, तजुर्बाकार और जारह सालार समझते थे। इसलिए उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना मुशीर खास बल्कि दस्ते रास्त बनाकर साथ रखा हुआ था। अब हरकल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरों की शदीद जरूरत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल में भी नहीं घबराते थे। उन्होंने जो मशवरे दिए, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरी तौर पर उन पर अमल किया। वो ज्यादा सोचने का वक्त था ही नहीं, एक एक लम्हा कीमती था। हरकल का लश्कर अंताकिया से कूच कर चुका था। हम्स पर मुसलमानों के कब्जे का 3रा महीना गुजर रहा था। हरकल के लश्कर का वो हिस्सा जो जबला बिन अल अहम की ज़ेरे कमान था, जून 636 ईस्वी में हम्स के करीब पहुंच गया। हरकल के जासूसों ने उसे इत्तला दी थी कि उन्होंने मुसलमानों की फौज को शिरस के मकाम पर पड़ाव डाले देखा है, लेकिन जबला का लश्कर वहां पहुंचा तो वहां पड़ाव के आसार तो मिलते थे, लेकिन लश्कर का कोई भी आदमी वहां नहीं था। जबला ने कहा कि वो हम्स में इकट्ठे हो गए हैं। उसने अपना हिरावल दस्ता हम्स को रवाना कर दिया। देखा कि शहर के दरवाजे खुले हुए हैं, दीवारों पर शहर के लोग खड़े थे, कोई फौजी नजर नहीं आता था। हिरावल के सालार ने पूछा, कहाँ हैं मुसलमान? उसे ऊपर से जवाब मिला, यहाँ कोई मुसलमान नहीं। रूमी हिरावल के सालार ने कहा, क्या तुम अपने मजहब के दुश्मन के साथ मिल गए हो? क्या दरवाजे खुले छोड़कर हमें धोखा देना चाहते हो? ऊपर से शहरियों ने उसे बताया, अंदर आकर देख लो। हिरावल के सालार ने कहा, अगर तुम भी इस धोखे में शरीक हो तो अपनी सजा सोच लो। उसने अपने दस्ते को शहर के बाहर रहने दिया और अपने सालार जबला की तरफ कासिद दौड़ा दिया कि ये धोखा मालूम होता है कि शहर में कोई फौज नहीं। जबला को पैगाम मिला तो वो वाही तबाही बकने लगा, गुस्से से चिल्लाया, ये धोखा है। मुसलमानों ने हमारी फौज को जहाँ भी शिकस्त दी है, धोखे से दी है। वो शहर में मौजूद हैं और उन्होंने हमें फांसने के लिए शहर के दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। जबला ने अपने 30,000 के लश्कर को पेशकदमी का हुक्म दिया, इस हिदायत के साथ कि हम्स के दरवाजों में सैलाब की तरह दाखिल हों और शहर में बिखरे नहीं। मुसलमान लोगों के घरों में छुपे हुए होंगे। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि उसका लश्कर शहर में बिखर गया तो मुसलमान उसके सिपाहियों को चुन चुन कर मारेंगे। वो सैलाबी की मानिंद शहर में दाखिल हुए और मुसलमानों को ललकारने लगे कि वो बाहर आएं, लेकिन कोई मुसलमान बाहर न आया। जबला ने खतरा मोल लेकर हर घर की तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही लोगों के घरों पर टूट पड़े। तलाशी के बहाने उन्होंने घरों में लूट मार की और औरतों पर दस्त दराजी की। शहरी चीखते चिल्लाते बाहर आ गए, तुमसे अच्छे तो वो थे जो चले गए हैं। तुमने अपने मजहब का भी एहतराम नहीं किया। हमारे मजहब का एहतराम तो मुसलमानों ने किया था। वो हमसे लिया हुआ जिजिया वापस कर गए हैं। वही अच्छे थे, वही अच्छे थे। मुसलमान तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे। जबला बिन अल अहम शहर के मर्दों और औरतों की चीखो पुकार और आहो बुका सुनता रहा। उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान चले गए हैं। उसने जब अपने हम मजहब लोगों की जबान से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वो तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे और ये कि उन्होंने जिजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। जबला ने अपने लश्कर से कहा, शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बायस क्या है
और क्यों हर कस्बे और हर शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं? ये अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने उनकी इज्जत और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने इनकी आबरू पामाल कर दी और इनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूट मार करने आए हो और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है। तुमने लड़े बगैर ये शहर ले लिया है। अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम्हें न लूट मार की होश रहती, न तुम किसी औरत की तरफ देखते। जो सामान तुमने लोगों के घरों से उठाया है वो यहाँ रख दो। जिज़िये की वापसी एक तारीखी हकीकत है। बिलाजरी, अबू सईद इब्न हिशाम और तबरी ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर जब सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफ्तूहा कस्बे और शहर छोड़कर जाबिया के मकाम पर तमाम दस्तों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हम्स के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हम्स से जा रहे हैं। पहले तो उन अफराद को यकीन न आया। जब यकीन आया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। एक शहरी ने कहा, हमने पहली बार अदलो इंसाफ देखा था। हमने जुल्म, जबर और बेइंसाफी का राज देखा था। आप हमें अदलो इंसाफ और इज्जत व आबरू से महरूम करके फिर जालिमों के हवाले करके जा रहे हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आ जाएंगे। मैंने तुम्हें वो जिज़िया वापस देने के लिए बुलाया है जो हमने तुमसे वसूल किया था। शहरियों के नुमाइंदों ने मुत्तफिका तौर पर एहतजाज किया, नहीं, हम अपना जिज़िया वापस नहीं लेंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये जिज़िया हम पर हराम हो गया है। हमने तुमसे इस मुआहदे पर जिज़िया लिया था कि हम तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम तुम्हें उन लोगों के रहमो करम पर छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें तुम जालिम और जाबिर समझते हो। हम तुम्हारी हिफाजत और सलामती का मुआहिदा पूरा नहीं कर सके। तुम अपना जिज़िया वापस ले लो और ये तमाम शहरियों को वापस कर देना। एक मौरिख अबू यूसुफ ने लिखा है कि हम्स के शहरी जो पहले ही मुसलमानों के सलूक और इंतजाम और अदलो इंसाफ से मुतासिर थे, जिज़िये की वापसी से और ज्यादा मुतासिर हुए। हद ये कि हम्स में जो यहूदी मुकीम थे, उनके नुमाइंदे ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हम्स में अब वही हुक्मरान दाखिल हो सकेगा जो फौजी ताकत के बलबूते पर आएगा, वरना वो किसी और को अपने ऊपर हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे। एक यहूदी के मुंह से मुसलमानों की हिमायत के अल्फाज इस वजह से हैरान कुन है कि यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। रूमी फौज का सालार कनातीर हरकल के मंसूबे के मुताबिक दमिश्क पर हमला करने गया तो वहाँ उसे इस्लामी फौज का कोई आदमी नजर नहीं आया। मुसलमान दमिश्क से निकलकर जाबिया चले गए थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन तमाम सालारों को जो मफ्तूहा जगहों के हाकिम मुकर्रर हुए थे, हुक्म भेजा था कि वहाँ से कूच से पहले लोगों को जिज़िये की रकम वापस कर दी जाए, क्योंकि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। चुनाचे दमिश्क के शहरियों को भी जिज़िया वापस कर दिया गया। इस तरह मुसलमान अपने पीछे बड़ा अच्छा तासुर छोड़कर आए, लेकिन वो उस इलाके से निकले नहीं। तमाम दस्ते दरियाए यरमूक से 7-8 मील दूर जाबिया के मकाम पर इकट्ठे हो गए। इनमें शरहबील बिन हसना, अमर बिन अल-आस, यजीद बिन अबी सुफियान, ज़ुर्रार बिन अल-अज़वर जैसे नामी गिरामी सालार काबिल जिक्र हैं। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको मुशावरत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। क्या मेरे चेहरे पर वही परेशानी नहीं है जो तुम एक दूसरे के चेहरों में देख रहे हो? लेकिन ये परेशानी है मायूसी नहीं, मायूस न होना। मायूस न होना उस अल्लाह की ज़ात बारी से जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी में हम इतनी मुद्दत से घरों से निकले हुए हैं। हम पसपा नहीं हुए हैं, पीछे हटे हैं, और पीछे इसलिए हटे हैं कि इकट्ठे होकर उस दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें जो हमारे दीन का दुश्मन है। क्या तुमने सुन लिया है कि हरकल की फौज की तादाद 2 लाख के करीब है? सालारों की आवाजें सुनाई दी, हाँ अमीनुल उम्मत, सुन लिया है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और हम कितने हैं? 40,000। लेकिन तुम हर मैदान में कलील तादाद में थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया कि ईमान वाले 20 हुए तो 200 कुफार पर गालिब आएंगे। फिर भी मैं तुम्हें इम्तिहान में नहीं डालूंगा, हुक्म नहीं दूंगा, मुझे मशवरा दो। एक सालार ने कहा, क्या ऐसा ठीक नहीं होगा कि हम वापस चले जाएं? हरकल हमेशा इतनी ज्यादा फौज नहीं रखेगा। जो ही कभी इत्तला मिले कि हरकल ने फौज की तादाद कम कर दी है, फिर हम वापस आ जाएंगे। हम पहले से ज्यादा तैयार होकर आएंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसका ये मतलब लिया जाएगा कि हमारे मुजाहिदीन ने इतना खून बहाकर और कुर्बानियां देकर जो इलाके फतह किए हैं वो रूमियों को वापस कर दें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सारे लश्कर का हौसला टूट जाएगा और दुश्मन का हौसला मजबूत हो जाएगा।
रूमी फौज पर हमने जो धाक बिठाई है वो खत्म हो जाएगी। एक और सालार ने कहा, हम फैसला कुन जंग लड़ेंगे, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। इस मशवरे पर ज्यादातर सालारों ने लब्बैक कहा। लड़े बगैर वापस गए तो मदीने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, फिर पसपाई भी हमारी रिवायत बन जाएगी। अपने बच्चों को ये सबक मिलेगा कि दुश्मन कवि हो तो भागा भी जा सकता है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने न किसी की तायद में कुछ कहा न मुखालिफत में। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, क्यों अबू सुलेमान, क्या तू कोई मशवरा नहीं देगा? तेरी जुर्रत और काबिलियत की जरूरत तो अब है, क्या सोच रहा है तू? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इब्ने अब्दुल्लाह, जिस किसी ने जो कुछ भी कहा है वो अपने ख्याल के मुताबिक ठीक कहा है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सबने मिलकर जो फैसला किया मैं उसका पाबंद रहूंगा और तेरा हर हुक्म मानूंगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू जो कुछ कहना चाहता है कह दे अबू सुलेमान, मुझे तेरी राय की जरूरत है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पहली बात ये है अमीनुल उम्मत, हम बड़ी खतरनाक जगह आकर बैठ गए हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर क़सारिया में रूमियों की फौज मौजूद है। उसकी नफरी 40,000 है और उसका सालार हरकल का एक बेटा कुस्तंतीन है। हमारी तादाद उतनी ही है जितनी अकेले कुस्तंतीन की है। हम ऐसी जगह पर हैं कि वो हम पर अकब से आसानी से हमला कर सकता है। ऐसा हमला वो उस वक्त करेगा जब सामने से हम पर हरकल की फौज हमला करेगी। हमें यरमूक के मकाम पर चले जाना चाहिए। वो जमीन घुड़सवार दस्तों के लड़ने के लिए बहुत अच्छी है और एक फायदा ये भी है कि मदीना से कुमक और रसद का रास्ता खुला रहेगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरे सालारों की तरफ देखा। सबने कहा कि इससे बेहतर और कोई तजवीज नहीं हो सकती। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त जाबिया से यरमूक की तरफ कूच का हुक्म दे दिया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौज की अकबी गार्ड के तौर पर पीछे रहने दिया। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।